جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے اور آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر ملک بھر میں یوم تشکر منانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم اس کامیابی پر اللہ کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں سرخرو فرمایا۔ یہ دن افواج پاکستان کی بہادری کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپریشن بنیان المرصوص نے دشمن کی جارحیت کو مؤثر اور بھرپور جواب دیا اور پاکستان نے ہر محاذ پر برتری ثابت کی۔ دشمن کی جارحیت کے باوجود پاکستان نے صبر و تحمل لیکن مکمل تیاری کے ساتھ اپنے دفاع کو یقینی بنایا۔ وزیر اعظم نے اپیل کی کہ قوم بالخصوص علماء کرام آج پورے ملک میں اجتماعی دعاؤں اور نوافل کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور شہداء اور غازیوں کے لیے خصوصی دعا کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افواج پاکستان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، قوم ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر حل کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا کہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر کام کروں گا اور دیکھوں گا کہ کیا ہزاروں سال بعد مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نکل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے کے حل تک دنیا کے لیے دونوں ممالک کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ جنگ بندی پر دونوں ملکوں کی تعریف کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں بھارت اور پاکستان کی مضبوط اور غیر متزلزل قیادت پر بے حد فخر محسوس کرتا ہوں۔ دونوں ممالک کی قیادت نے دانشمندی، قوت اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کی قیادت نے اس حقیقت کو پوری طرح جانا اور سمجھا کہ جارحیت رکنی چاہیے، کشیدگی کے بے شمار جانوں کے ضیاع اور بے پناہ تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ لاکھوں بے گناہ اور نیک لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو سکتے تھے۔ پاک بھارت جنگ بندی پر عالمی رہنماؤں کا خیر مقدم۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے پاک بھارت جنگ بندی پائیدار امن میں کردار ادا کرے گی۔ جنگ بندی سے دونوں ممالک میں دیرینہ مسائل کے حل کے لیے سازگار ماحول پیدا ہوگا۔ سعودی عرب کے وزیر مملکت برائے خارجہ عادل الجبیر نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے رابطہ کیا اور اسحاق ڈار نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے فروغ میں سعودی عرب کے مثبت تعمیری کردار کو سراہا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد نے بھی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا کہ دونوں ممالک اس موقع کو کشیدگی میں کمی اور خطے کے پائیدار امن کے لیے استعمال کریں۔ جرمنی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بات چیت ہی کشیدگی کے خاتمے کی کنجی ہے، جبکہ برطانیہ نے بھی جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ ناظرین، شاہینوں نے بھارتی فوج کی توپوں کو ایسا خاموش کیا جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ہماری دلیر اور بہادر فوج نے پیشہ ورانہ انداز میں مؤثر جواب دے کر عسکری قیادت کا ایک سنہرا باب رقم کیا۔ یہ افواج پاکستان کی کامیابی کے ساتھ پوری قوم کی فتح ہے۔ قوم سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو اس کی راہ میں صف بند ہو کر لڑتے ہیں۔ دنیا پر ثابت کر دیا کہ پاکستانی ایک خوددار قوم ہے۔ کوئی ہماری خود مختاری کو چیلنج کرے تو اپنے دفاع میں سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن پر غالب آتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بھارت نے کھلی جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ بھارت نے ہم پر بلا جواز جنگ مسلط کی۔ ہم نے بلا تاخیر غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی تھی۔ ہم نے مسلسل برداشت کا مظاہرہ کیا۔ گھمنڈی دشمن نے ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کی ناکام کوشش کی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ دشمن کو اسی زبان میں جواب دیا جائے جسے وہ اچھی طرح سمجھتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا دشمن کے رافال ہمارے شاہینوں کے نشانے پر آ کر فیل ہوئے۔ ہم نے دشمن کے ساتھ وہی کیا جو ایک باوقار قوم کو زیب دیتا ہے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاک افواج نے بھارت کی نام نہاد فوجی قوت کو سخت ٹھیس پہنچائی۔ پاک بھارت کشیدگی اور جنگ بندی پر اپنے بیان میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ مجھے پاکستان کی مسلح افواج، پاک بحریہ اور فضائیہ پر ہمیشہ سے یقین رہا ہے۔ ہم نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ آج ہماری قوم کا عزم بے مثال ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور تمام افواج کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کی بہادری اور انتھک محنت نے اس جنگ میں ہمیں فتح سے ہمکنار کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ قوم کو خوشی منانی چاہیے اور بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام تنازع جموں کشمیر کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل اور دیگر مرکزی مسائل بالخصوص سنتاس معاہدے کے حل میں ہے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پاکستان اشتعال انگیزی نہیں چاہتا، امن کا خواہاں ہے، لیکن ہم اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔
ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस, पाकिस्तान ने दुश्मन को तिगनी का नाच नचाया। शाहीनों ने रात के अंधेरे में हमला करने वाले बुज़दिल दुश्मन को दिन में तारे दिखा दिए। भारत पर फतह 1 मिसाइल दागे, भारत में मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में उधमपुर एयरबेस, पठानकोट, सरसा, सूरतगढ़ और एयरफील्ड तबाह हुई। भरामस स्टोरेज साइट, भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप और उड़ी में सप्लाई डिपो समेत अहम अहदाफ को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि पाकिस्तान के अवाम और मसाजिद को जिन एयरबेस से टारगेट किया गया था उन अहदाफ को निशाना बनाया गया। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से दिए जाने वाले मुंह तोड़ जवाब का एतराफ करते हुए फौजी अड्डों पर हमलों और नुकसान को तस्लीम कर लिया है। भारतीय वजारत दिफा ने कहा है कि पाकिस्तान ने मगरबी सरहदी इलाकों पर फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने उधमपुर और पठानकोट में फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। आदमपुर और भटिंडा स्टेशन पर भी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल से पंजाब एयरबेस स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश की। भारतीय हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान ने श्रीनगर, ओंतीपुर और उधमपुर के फौजी अड्डों को निशाना बनाया। आपको बताएं कि बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी देरपा होगी। पाक भारत जंगबंदी के लिए अमेरिका ने बेहतरीन किरदार अदा किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि जंगबंदी के लिए अमेरिका, सऊदी अरब और दीगर दोस्त ममालिक ने किरदार अदा किया। पाक भारत जंगबंदी के लिए अमेरिका और दीगर दोस्त ममालिक के किरदार को सराहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना था कि पहलगाम वाक़े में जो भी मुलविस हो उसे सजा दी जानी चाहिए। भारत को ये साबित करना होगा कि दहशतगर्दी का वाक़या पाकिस्तान से हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद जज बने और फैसला करके बमबारी शुरू कर दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जवाबी दिफाई कार्रवाई से भारत की ताकत का गुरूर खाक में मिल गया है। भारत का ख्याल था कि पाकिस्तान को रगड़ा देकर शायद अपनी शराइत पर लाएंगे, लेकिन भारत की ताकत का गुरूर खाक में मिल गया है। ख्वाजा आसिफ ने गुफ्तगू में मजीद कहा कि भारत की साख पर सवाल आ चुका है। हम जंग का मोमेंटम बढ़ा सकते थे, लेकिन हमने जंग को ब्रेक लगाने वाली ऑप्शन सामने रखा। बातचीत चलेगी तो इससे रास्ते निकलेंगे। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और भारत की बातचीत में सिंतास मुआहिदा, कश्मीर और दहशतगर्दी का मसला ज़ेरे गौर आएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भारत को मुज़ाकरात की मेज पर लाना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने गुफ्तगू में कहा कि वो भारत जो कह रहा था कि हम बातचीत नहीं ताकत के जरिए मसला हल करेंगे, पाकिस्तान के जवाबी हमलों के बाद सीज फायर के लिए तैयार हुआ। रिवायती जंग से मुतालिक पाकिस्तान के बारे में कहा जाता था कि ये भारत से नहीं जीत सकते। पाक फौज और एयरफोर्स की कामयाब कार्रवाई के बाद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान अपना दिफा करना खूब जानता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का यह भी कहना था कि किसी भी नई बातचीत या मुआहदे के लिए जरूरी है कि भारत पुराने मुआहदे तस्लीम करे और उनका एहतराम करे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि भारत कभी नहीं चाहता था कि मसला कश्मीर का मामला उठे। निजी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए शेरी रहमान ने कहा कि भारत को खुद एहतसाबी जरूर करनी चाहिए कि वहां कितनी तबाही हुई। शेरी रहमान ने कहा कि भारत में कितनी तबाही हुई वो खुद कभी नहीं बताएंगे, लेकिन सब सामने आ जाता है। भारत ने अमन को नागुज़ीर नहीं समझा। भारत की हिंदुत्वा पॉलिसी एक शिकस्त के बाद तब्दील नहीं होगी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा ने बताया कि भारतीय हुकूमत ने जो अपनी कौम से वादे किए थे वो उसके हलक में फंस गए। उन्होंने कहा कि हकाइक नहीं छुप सकते। दुनिया भारत से सवाल कर रही है, भारतीय लोग भी भारतीय सरकार से सवालात पूछ रहे हैं। आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि उम्मीद है हुकूमत जीती हुई जंग मुज़ाकरात की मेज पर नहीं हारेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान को भारत पर बढ़तरी हासिल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान जीती हुई जंग मुज़ाकरात की मेज पर नहीं हारेगा और वक्त आ चुका है कि मसला कश्मीर पूरी कुव्वत से उठाया जाए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कौम कश्मीर पर कोई समझौता कबूल नहीं करेगी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर पर पेशरफ्त होनी चाहिए। सिंतास मुआहदे से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सिंतास मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाए।
पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर किया। अमरीकी सहाफी ने सीज फायर की तफसीलात बता दी। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाले मिसाइलों की बारिश कर दी। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर हुआ। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एडिटर निक रॉबर्टसन ने टीवी इंटरव्यू में बताया कि कई दिनों से पूरी दुनिया भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर की कोशिशें कर रही थी, मगर कामयाब नहीं हुई। फिर भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसिस पर हमला किया। अमरीकी सहाफी का कहना था कि अमरीकी वजीर खारजा ने सऊदी अरब और तुर्क हुकाम से राबता किया। सऊदी और तुर्क हुकाम से राबते के बाद सिफारती तरीके से मामला हल हुआ और सीज फायर मुमकिन हुआ। आपको बताएं कि अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान भारत जंगबंदी मुआहदे में वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब सदर JD वेंस ने वाज़ेह फ़र्क डाला। अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा कि ये अमरीकी हुकूमत की जानिब से सदर ट्रंप के विजन और बसीरत पर अमल दरामद का नतीजा है। टैमी ब्रूस का कहना था कि दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म ने समेत कई आला हुकाम से कई मरतबा टेलीफोनिक राबते हुए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि हम मजीद राबतों को मुमकिन बनाने के लिए पुर उम्मीद हैं। उम्मीद है मजीद बातचीत मौसर तरीके से आगे बढ़ेगी और ये सिलसिला जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान और भारत जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। कुछ मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि विफाकी हुकूमत आइंदा माली साल का बजट 2 जून को कौमी असम्बली में पेश करेगी। ज़राए के मुताबिक बजट में आलमी मालियाती फंड के मुतालबे पर दरामदी गाड़ियां सस्ती किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का दरामदी गाड़ियों पर टैक्सेस में कमी पर गौर। 850 cc तक की छोटी और 1800 cc तक की बड़ी गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी में 5 से 30% तक कमी की तजवीज़ दी गई है। IMF ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट को बहाल किया जाए और दरामदी शोबे पर भारी टैक्सेस में नरमी लाई जाए ताकि मईशत में तवाजुन पैदा हो। बजट में इन तजावीज़ की मंजूरी की सूरत में गाड़ियों की कीमतों में नुमाया कमी मुतवक्के है, जिससे सारिफीन को बराह रास्त रिलीफ मिल सकता है। पाक भारत जंगबंदी और फ्लाइट शेड्यूल बेहतर होने के बावजूद मुल्क भर की 150 परवाजें मनसूख। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान भर से दर्जनों परवाजें गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। हुकाम का बताना है कि कराची की 45, लाहौर की 38 और इस्लामाबाद की 40 परवाजें मनसूख कर दी गई। इसी तरह मुल्तान की 10, पेशावर की 11 और सियालकोट की 6 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। मनसूख की कई परवाजों में 138 बैनुल-अक़वामी परवाजें भी शामिल हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माओ से मोहब्बत के इजहार का आलमी दिन मदर्स डे आज मनाया जा रहा है। माओ से मोहब्बत के इजहार का आलमी दिन मनाने का मकसद उस अजीम और मुकद्दस रिश्ते की अहमियत का एहसास उजागर करना है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, आज मई का दूसरा इतवार बहुत से मुल्कों में माओ के दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। ये दिन वो मौका होता है जब लोग अपनी माओ के लिए अपनी मोहब्बत और एहतराम का इजहार करते हैं। इस दिन लोग अपनी माओ को ये एहसास दिलाते हैं कि वो इनके लिए हमेशा अहम थी और रहेंगी, और ये कि वो इनसे हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे। माँ जैसी खूबसूरत हस्ती, लाजवाल रिश्ता, दिन हो या रात, औलाद के लिए करती है सुबह शाम बस काम। जिंदगी के तमाम दुखों और मुसीबतों को अपने आंचल में छुपा लेती है। औलाद के चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट बिखेरती है। माँ हजार दुख छुपाकर अपनी औलाद को सिर्फ खुशियां देने की कोशिश करती है। माँ कुदरत का वो खूबसूरत तरीन तोहफा है जिसकी जितनी कदर की जाए कम है। माशरती सतह पर मदर्स डे के मौके पर तमाम माओ को खुसूसी खिराज तहसीन पेश किया जाता है। वैसे तो हर दिन हर लम्हा इन अजीम माओ के लिए है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां अपनी औलाद के लिए वक्फ कर दी हैं और पूरी दुनिया के लिए सिर्फ मोहब्बत का पैगाम है। तू कितनी भोली